بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں دو تین باتوں کے حوالے سے آج لائیو آپ حضرات سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سندھ یونیورسٹی کے طلباء کافی عرصے سے احتجاج پر ہیں۔ ان کے فیسوں میں جس قدر اضافہ کیا گیا ہے اور جس طرح ان غریب طلباء کے تعلیم کو مہنگا بنا کر بوجھ ڈالا گیا ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں جو اہم چیزیں تھیں اس میں ایک صحت بھی ہے اور ایک تعلیم بھی ہے، لیکن آج صحت کا بھی بیڑا غرق ہے سندھ میں، تو تعلیم کا بھی بیڑا غرق ہے۔ جناب بلاول زرداری صاحب، میرے بھائی، سندھ میں صحت کی بہترین سہولیات کے ہر پریس کانفرنس میں دعوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہیں انہوں نے گھوٹکی ٹرین حادثے میں زخمی ہونے والی بچی کا بہتر علاج کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کو حکم کیا کہ آغا خان میں ان کو داخل کروایا جائے۔ اور بھی مختلف مریضوں کو انہوں نے آغا خان سرکاری خرچے پر ریفر کروایا۔ اگر واقعی سندھ کے ہسپتالوں کا حال اتنا اچھا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کے چیئرمین صاحب مریضوں کو یورپ طرز پر اپنی بنائی گئی ہسپتالوں میں کیوں نہیں بھیجتے اور آغا خان کی طرف کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو ایک تو جو سندھ یونیورسٹی کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جو ان کے ساتھ فیسوں کے معاملے پر ظلم ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام ان غریب طلباء اور ان کے احتجاج میں ان کے ساتھ شامل رہی، وہاں جمعیت طلباء اسلام کے عہدیداران وہاں شامل رہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر ان بچوں کے ان فیسوں کے معاملات کو حل کیا جائے۔ اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ 1 گھنٹے کی بارش کے بعد جو لاڑکانہ کا حشر ہوا، میرے گھر کی یونین کونسل تو گندگی کا ڈھیر ہے۔ جب سے یونین کونسل کا نظام ختم ہوا ہے، کسی گلی سے کچرا اٹھانے کے لیے میونسپل انتظامیہ تیار نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ مہربانی کی ہے کہ میری گلی کو، میرے یو سی کو، میرے محلے کو پوری یونین کونسل جس نے پیپلز پارٹی کو مسترد کیا اور میری جماعت پر اور مجھ پر اعتماد کیا، ان کو اس بات کی سزا دے رہے ہیں کہ میں حق کیوں بول رہا ہوں، میں سچ کیوں بول رہا ہوں، میں لاڑکانہ میں ان کا مقابلہ کیوں کر رہا ہوں۔ انہوں نے میری یونین کونسل کے ساتھ جو حشر کیا ہے، شاید کسی 500 سال پہلے کے ان ظالم اور جابر حکمرانوں کے ادوار میں بھی اس کی نظیر نہیں ملتی جو نظیر ابھی بلاول صاحب نے میری یونین کونسل کے ساتھ کی ہوئی ہے۔ لیکن ہم نے برداشت کیا اور اب تک کر رہے ہیں۔ لیکن کل کی بارش کے بعد جو حشر لاڑکانہ کے ساتھ ہوا ہے، جو حشر انہوں نے لاڑکانہ شہر کے ساتھ کیا ہے، ان کی ساری بجٹ جو اربوں روپے اور کھربوں روپے کی ترقیات ہے وہ کہاں گئی، کہاں استعمال ہوئی؟ جو لاڑکانہ پورا جو ہے وہ گندگی کا ڈھیر بن چکا ہے اور شہر کی مین بازاریں گندگی کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ میں ڈی سی لاڑکانہ سے، میونسپل انتظامیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اسی لاڑکانہ کے صدقے تم، ویسے تو 70 سال سے سندھ میں اقتدار میں ہو، یہ سیٹیں 70 سال سے لاڑکانہ سے آپ اٹھاتے رہے ہو، لیکن پچھلے 17 سال سے جو سونے کی چڑیا آپ کے ہاتھ میں سندھ گورنمنٹ ہے وہ لاڑکانہ کے صدقے ہے۔ خدا کے لیے لاڑکانہ کے عوام پر رحم کریں، لاڑکانہ کے لوگوں پر رحم کریں۔ لاڑکانہ کے لوگوں نے کیا قصور کیا؟ صرف یہ کہ انہوں نے بھٹو صاحب کو دل میں جگہ دی، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو دل میں جگہ دی، اور اس کے بدلے آپ نے ان کے ساتھ یہ حشر کیا ہے۔ اور تیسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ باقی محکمے تو ان کا تو بیڑا غرق ہوا سو ہوا سندھ میں، لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ سندھ کے جیلوں میں
कराची से लेकर कश्मीर तक जेलों में कैदी जो मुख्तलिफ केसेस में वो बंद हैं, सज़ा भुगत रहे हैं, दहशतगर्द हैं, टारगेट किलर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, एटीसी कोर्टों में उन पर, दहशतगर्दी कोर्टों में उन पर केसेस चल रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी के नाअहल वज़ीर और इंतज़ामिया की वजह से अंदर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा यहाँ तक कि उन्होंने जेल के अंदर से सेल्फियाँ बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की और कैदी फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर इस्तेमाल करने लगे हैं। कराची के एक जेल में मैं ये दावे के साथ बावसूख ज़रा के साथ कह रहा हूँ, कराची के एक जेल में चंद दिन कबल, तारीख़ भी मुझे मालूम है, एक बाअसर कैदी जिसका ताल्लुक़ सिंध के हुक्मरान जमात के साथ है, उसको जेल के बैरक से निकाल कर किसी बंगले में रखा गया, जेल के करीब, जेल के चार दीवारी के अंदर वो बंगला था। वहाँ उसके लिए शराब और शबाब की महफ़िलें बनाई गईं, बाहर से लोग मंगवा कर जो है वो पूरी रात उसके लिए महफ़िलें सजाई गईं और बाकायदा उनके लिए शराब का इंतज़ाम किया गया, बाकायदा उनके दोस्तों को लाकर वहाँ उनके हवाले किया गया। और दूसरी तरफ जो है वो सिंध का केस लड़ने वाला सनान खान कुरैशी, उसको हस्पताल जेल के अंदर सहूलत तो अपनी जगह, बाकी मामलात तो अपनी जगह, एक मैट्रेस भी मुहैया नहीं है और वो बग़ैर मैट्रेस के वहाँ ज़मीन पर सो रहा है। मेरी ख़ुद उससे मुलाकात हुई, उसने मुझे बताया कि जेल के अंदर जो भी चीज़ है वो बिक रही है, बैरक्स के बैरक्स बिक रहे हैं और जेल इंतज़ामिया धड़ल्ले से जो है वो वॉक लगाए बैठी हुई है। मैं समझता हूँ कि खुदा के लिए इन चीज़ों का इदराक किया जाए, सिंध के यूनिवर्सिटी के बच्चों के फ़ीसों का मामला हल किया जाए, लाड़काना पर रहम किया जाए। सिंध के जेलों के अंदर क्रिमिनल्स अगर बैठकर मोबाइल फ़ोन चलाएंगे तो फिर एसएसपी लाड़काना साहब को तंबी करने की ज़रूरत नहीं है, तंबी उनको करने की ज़रूरत है, तंबी उनको करने की ज़रूरत है जो मोबाइल फ़ोन अंदर भेजते हैं। जेल के अंदर से सारे क्रिमिनल्स जो है वो अपनी सारी कार्रवाइयाँ चला रहे हैं। आज सिंध के स्ट्रीट क्राइम में कितना बड़ा इजाफा हुआ है, सिंध के अंदर कबायली तसादुम में कितना बड़ा इजाफा हुआ है, गली गली के अंदर, महल्ले महल्ले के अंदर आज मोबाइल स्नैचिंग शुरू हो गई है, मोटरसाइकिलें दिन दिहाड़े छीनी जा रही हैं, लोगों के दुकानों को लूटा जा रहा है, घरों को लूटा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ इन तमाम लाइट, एक मरतबा फिर लोड शेडिंग, चाहे उसका मसला विफाक के साथ है, लेकिन 10-10 घंटे, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है इस गर्मी में, जहां लाड़काना 60 और 59 के टेम्परेचर के करीब पहुंचता है, 51 पर पहुंचता है, वहां पर 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे की बिजली बंद है। ये जुल्म हो रहा है। इन तमाम मसाइल पर जमीयत उलमा इस्लाम ने एहतिजाजी तहरीकों का ऐलान कर रखा है। 17 जून को हमने ज़िले हेडक्वार्टर्स में मुजाहरे किए, सिंध के ज़मीनों के मसले पर, सिंध के जज़ायर के मसले पर, सिंध के पानी, सेहत, तालीम के मसले पर। और फिर 29 जुलाई को जो एक बहुत बड़ा जलसा, पाकिस्तान के तारीख़ का बड़ा जलसा कराची मज़ार क़ायद बाग़ जिना में होने जा रहा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस जलसे में जहाँ नाअहल हुक्मरानों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाएगी, वहाँ पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सिंध के तमाम इश्यूज़ पर बात की जाएगी, हर मसले पर बात की जाएगी। कोई ऐसा सिंध हुकूमत की तरफ से ज़्यादती होने वाला मसला नहीं जिस पर हम बात न करें। सिंध के जज़ायर की बात करेंगे, सिंध के ज़मीनों को बेचने की बात करेंगे, कराची से लेकर कश्मीर तक सिंधियों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, सिंध के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, कबायली जो तसादुम हो रहे हैं, कबायली जो तकरार हो रहे हैं, जिस अंदाज से जो है वो सरेआम स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है, तालीम और सेहत का जो फुकदान है, इंशाअल्लाह 29 जुलाई को मज़ार क़ायद कराची के जलसे में इन मामलात को भी हाईलाइट किया जाएगा। मैं अपील करता हूँ पूरे सूबे सिंध को कि वो 29 जुलाई 2021 के जलसे की तैयारी के लिए आज से अपना किरदार अदा करें। जमीयत का ऐसा कोई कारकुन न हो जो 29 जुलाई 2021 को अपने घर में बैठा हो, वो मुझे कराची में चाहिए। जो मेरे साथ इस तहरीक में चलना चाहता है, जो हमारे साथ मेरे कायद के शाना बशाना इस मुल्क को इन मसाइल से निकालने के लिए, इस मुल्क को इन नाअहल और सिलेक्टेड हुक्मरानों से जान छुड़ाने के लिए, कश्मीर दुश्मन और इस्लाम दुश्मन हुक्मरानों से जान छुड़ाने के लिए आगे निकलना चाहता है, जो सिंध को इन मसाइल से निजात दिलाना चाहता है, मैं उनसे अपील करता हूँ कि 29
जुलाई 2021 को वो मेहरबानी करके कराची मज़ार कायद पर पहुँचें। 29 जुलाई के बाद ज़िले हेडक्वार्टर्स में करप्शन मिटाओ सिंध बचाओ के नाम से एहतजाजी मुजाहरे होंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कश्मीर या घोटकी से लेकर कराची वज़ीर आला हाउस तक सिंध के इन बुनियादी मसाइल पर लॉन्ग मार्च जमीयत उलमा इस्लाम करेगी और एक भरपूर तहरीक चलाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। बहुत सारे लोग कमेंट्स में मेरी अपनी यूसी का जिक्र कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने मुझे देर से ज्वाइन किया है। मैं उनको दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी इब्तदाई गुफ्तगू आप सुने। मैंने यही तो कहा है कि मेरी अपनी यूसी को इस तरह बनाया गया है कि 300-400 सदियाँ पहले भी कोई आमिर और जाबिर जो बादशाह होते थे वो भी किसी इलाके के साथ इस तरह जुल्म नहीं करते थे जिस तरह मेरी यूनियन काउंसिल के साथ जुल्म किया गया है, सिर्फ इस जुर्म में कि मैं हक क्यों बोलता हूँ, मैं सच क्यों बोलता हूँ, मैं इस्लाम की, पाकिस्तान की और सिंध की बात क्यों करता हूँ, इन नाअहल हुक्मरानों को क्यों ललकारता हूँ। उसकी सज़ा वो मेरे महल्ले को दे रहे हैं, मेरे यूनियन काउंसिल को दे रहे हैं। लेकिन रात की बारिश के बाद जो हशर उन्होंने लाड़काना के साथ किया है, लाड़काना की आवाम ने क्या उनके साथ जुल्म किया है, मैं ये तमाम चीज़ें इब्तदाई गुफ्तगू में अर्ज़ कर चुका हूँ। पहली बात, सिंध यूनिवर्सिटी के बच्चों की फ़ीसों का मामला हल किया जाए। दूसरी बात, लाड़काना के आवाम पर रहम किया जाए, और इस बारिश के बाद लाड़काना जिस तरह गंदगी का ढेर बन चुका है और पीपल्स पार्टी के हुक्मरानों का मुंह चढ़ा रहा है, और तीसरी बात उस लाड़काना को साफ़ किया जाए। और तीसरी बात कि सिंध के जेलों में बड़े बड़े कैदी जिस तरह खुलेआम मोबाइल फ़ोनें इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, और उसके अलावा वो अंदर से बैठकर अपने क्रिमिनल्स मामलात और एक्टिविटीज़ को चला रहे हैं, जिसकी वजह से सिंध के अंदर स्ट्रीट क्राइम बढ़ चुका है, कबायली तकरार बढ़ चुके हैं, अगवा बराए तावान की वारदातें बढ़ चुकी हैं। उन तमाम मसाइल के हल के लिए सिंध हुकूमत अपना किरदार अदा करे। जमीयत उलमा खामोश नहीं बैठेगी। सेलेक्टेड और नाअहल हुक्मरान इमरान खान, इस्लाम दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन, कश्मीर फरोश हुक्मरान इमरान खान के ख़िलाफ़ भी अलम बगावत हमने 25 जुलाई से बुलंद किया हुआ है। तो सिंध के इन नाअहल हुक्मरानों के ख़िलाफ़ भी हमारी ये तहरीक, ये जद्दोजहद जारी रहेगी। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 29 जुलाई को मज़ार कायद कराची पर सिंध की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। जो मौलाना फजलुर रहमान साहब से मोहब्बत करते हैं, जो मुझसे या मेरे शहीद वालिद से मोहब्बत करते हैं, हज़रत बेरवी, अमरोटी, हालेजवी के पैरोकार हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि 29 जुलाई को आपने घर में नहीं बैठना, अपने हुकूक के लिए, गरीबों, मिस्किनों, हारियों और मज़दूरों के हुकूक के लिए, सिंध को अपने हुकूक दिलाने के लिए, और पाकिस्तान को इन नाअहल हुक्मरानों की चंबे से निकाल कर हकीकी मानों में इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। और इस तहरीक में जिस तरह आप शाना बशाना हमारे रहे हैं, मज़ीद शाना बशाना रहें। और 29 जुलाई 2021 को सिंध का कोई गैरतमंद बाशिंदा घर न हो, वो 29 जुलाई 2021 बरोज़ जुमेरात शाम 4 बजे मज़ार कायद पर मेरे साथ खड़ा हो, कायद मोहतरम के साथ खड़ा हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह फ़तह आपकी होगी, मुस्तक़बिल आपका है। ये जुल्म और जबर के दिन कम हैं। कौमें जब उठती हैं, कौमें जब अपने हुकूक के लिए लड़ती हैं, कौमें जब अपने हुकूक के लिए जाने कुर्बान करके आने वाले नस्लों को बेदार कर जाती हैं, तो उनकी मेहनतें रंग लाती हैं, ज़ाया नहीं होती। इंशाअल्लाह आपकी मेहनतें भी रंग लाएंगी, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये मुल्क भी ला इलाहा इल्लल्लाह का महवर और मरकज़ बनेगा। तो ये सिंध भी इन नाअहल हुक्मरानों से निजात हासिल करके एक मरतबा फिर बाबुल इस्लाम बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला आपका कायद मोहतरम कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब की तबीयत के हवाले से आपको बताऊं, वो अभी बहुत बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत अच्छे हैं। और उम्मीद है कि कल तक वो अस्पताल से फ़ारिग कर दिए जाएंगे। उनकी तबीयत अब बहुत संभल गई है, और इंशाअल्लाह 4 जुलाई को हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब सवात के जलसे में अपने कारकुनों के शाना बशाना खड़े होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब को लंबी उम्र नसीब फरमाए, सेहत वाली उम्र नसीब फरमाए। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।